Hey everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. So first article is English in India, a language of unity, opportunity and empowerment and some setback. So first point is English has functioned as India's link language for decades, enabling communication across a multilingual society and is no longer an alien language but an Indianized one. तो इंग्लिश जो इंडिया में क्या रोल प्ले करती है, हैज़ फंक्शनड एज इंडियाज़ लिंक लैंग्वेज, मतलब ये अब इंडिया में इंग्लिश एक तरह से इंडिया की एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जो फॉर डिकेड्स यूज़ हो रही है, इनेबलिंग टू मेक कम्युनिकेशन अक्रॉस अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी इज़ नो लॉन्गर, मतलब अब ये ना ही कोई एलियन लैंग्वेज बची है बट ये एज अ इंडियनाइज्ड वन बन चुकी है. Second point, India is among the largest English speaking population globally, with English serving as a first language for many and a second language for millions. तो जो इंग्लिश है वो इंडिया की मतलब वन ऑफ द एमंग लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन हो चुका है ग्लोबली, विद इंग्लिश सर्विंग एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब कुछ लोगों के लिए इंग्लिश एक तो फर्स्ट लैंग्वेज बन चुकी है एंड अ सेकेंड लैंग्वेज फॉर मिलियंस, और कुछ मिलियंस के लिए सेकेंड लैंग्वेज बनी हुई है. थर्ड पॉइंट, treating Hindi as an alternative to English risk undermining the inclusive and neutral role English plays in national unity. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश की वजह हिंदी को एज एन अल्टरनेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं टू इंग्लिश, जिससे रिस्क होता है अंडरमाइनिंग द इंक्लूसिव एंड न्यूट्रल रोल जो इंग्लिश प्ले करता है इन national unity. English is a critical skill in the 21st century global economy, especially in higher education, corporate sector, science, technology and the digital world. तो मतलब इंग्लिश है वो बहुत एक क्रिटिकल स्किल है इन 21st सेंचुरी इन ग्लोबल इकोनॉमी, स्पेशली कहाँ, इन हायर एजुकेशन, इन कॉर्पोरेट सेक्टर, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन डिजिटल वर्ल्ड. तो ये एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है इंग्लिश इन 21st सेंचुरी. 5 पॉइंट, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश significantly enhances employability and explain India's competitive edge in an international job market. Proficiency means होता है एक्सपर्टीज़ या स्किल इन इंग्लिश, सिग्निफिकेंटली क्या करती है, इन्हांस करती है, इंक्रीज करती है एम्प्लॉयबिलिटी और एक्सप्लेन करती है इंडियाज़ कॉम्पिटिटिव एज इन द इंटरनेशनल जॉब मार्केट. 6 point, the Indian job market and competitive examinations, including civil services and government recruitment, strongly favor English proficiency. जो हमारी इंडियन जॉब मार्केट है उसमें कॉम्पिटिटिव जैसे एग्ज़ाम्स हो गए हमारे, जैसे इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज हो गया, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स हो गए, और ये क्या करते हैं, इंग्लिश को बहुत ही स्ट्रांगली फेवर करते हैं, उसकी स्किल को, प्रोफिशेंसी मतलब एक्सपर्टीज़ को. 7 point, English functions as a language of empowerment, providing access to social mobility, economic power and career advancement. तो इंग्लिश क्या रोल प्ले करती है, इंग्लिश फंक्शंस करती है एज अ लैंग्वेज ऑफ एम्पावरमेंट, जो एम्पावर करती है, प्रोवाइड करती है एक्सेस टू सोशल मोबिलिटी, इकोनॉमिक पावर और करियर एडवांसमेंट. 8 point, promoting social justice require expanding English learning opportunities for the underprivileged rather than restricting or replacing the language. तो जो हम लोग प्रमोट करते हैं सोशल जस्टिस रिक्वायर, तो क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको हम उन तक भी पहुंचाएं जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, ना कि उनके लिए रिस्ट्रिक्ट करे और रिप्लेस करे द लैंग्वेज. ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड rather than restricting or replacing the language. And the second article is electoral accessibility and the spirit of Indian democracy. So here is a surprising but variable fact about how democracy works in India and why it matters and source. The surprising fact is that in India's election,
Polling stations are legally required to be set up so that no registered voter has to walk more than 2 kilometers to vote. Even if there is only one voter in that area, this has led officials to establish polling booths in extremely remote places such as deep inside forests just to ensure that every single voter can cast a ballot. तो इंडिया के इलेक्शंस में क्या होता है, जो हमारे पोलिंग स्टेशन है तो ये लीगली रिक्वायर्ड है, मतलब मैंडेट है कि आप जो पोल बूथ हैं उनको विद इन 2 किलोमीटर की रेंज में रखें, जिससे सेटअप नो रजिस्टर्ड वोटर हैज़ टू मोर, मतलब कोई भी रजिस्टर्ड वोटर वोट करने के लिए 2 किलोमीटर से ज़्यादा चल के ना जाए। इवन इफ़ देयर, अगर मान लो एक भी वोटर है तो आपको बनाना पड़ेगा उस एरिया में। दिस लेड टू ऑफिशियल टू इस्टेब्लिश बूथ इन एक्सट्रीमली रिमोट एरिया। तो ये जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए ऑफिशियल क्या करते हैं, एक्सट्रीमली रिमोट एरियाज में भी इनको मतलब पूल्स बूथ होते हैं बनाने पड़ते हैं इनसाइड डीप इनसाइड फॉरेस्ट जस्ट टू इंश्योर दैट एवरी सिंगल वोटर कैन कास्ट अ बैलेट। इससे क्या होता है कि कोई भी सिंगल वोटर वोट करने से रह न जाए और सारे वोटर इंश्योर करें एवरी सिंगल वोटर कैन कास्ट अ बैलेट। For example, in recent national election, officials traveled for days to set up booth inside Gir Forest, which is situated in Gujarat, for a single registered voter who lived there, so he could vote like everyone. मतलब एक एग्जाम्पल दिया है, ऑफिशियल ट्रैवल्स करते थे फॉर डेज टू सेट अप अ बूथ इनसाइड, कहाँ, गिर फॉरेस्ट, कहाँ पे, गुजरात में, जो कि केवल वहाँ पे एक ही वोटर रहता था जिससे वो वोटर को वो छूट ना पाए, इसलिए वहाँ पे भी उन्होंने एक वोटर बूथ लोकेट किया, सो ही कुड वोट लाइक एवरीवन एल्स। Why it matters? This fact highlights a core principle of Indian democracy. तो ये क्या हाईलाइट करता है, ये एक कोर प्रिंसिपल हाईलाइट करता है जो इंडियन डेमोक्रेसी का होता है, विच इज़ यूनिवर्सल सर्विस इज़ नॉट जस्ट अ थियोरटिकल, द सिस्टम गोज टू ग्रेट लेंथ्स टू मेक श्योर इट इज़ प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ। मतलब ये इससे ये हाईलाइट होता है कि जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो केवल एक थॉर्टिकल में ही ना बना रहे, प्रैक्टिकल में भी इम्प्लीमेंट होता है इन रियल लाइफ। इससे इंश्योर होता है वोटिंग एक्सेस फॉर एवरी सिटीज़न नो मैटर हाउ रिमोट देयर रेसिडेंस, मैटर नहीं करता वो कितना रिमोट एरिया में रहता है। री इन्फोर्सेस इन द आइडिया दैट एवरी वोट इज़ इक्वल एंड एवरी सिटीजन वॉइस काउंट इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो इससे क्या होता है, जो हमारा एक भी वोट होता है सब इक्वल होते हैं, every vote is equal and every citizen's voice count in the democratic process. It is a striking demonstration of democratic inclusion at an enormous logistical scale. So in a country of more than 1 billion eligible voter and complex geography, मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें मोर दैन बिलियंस एलिजिबल वोटर्स हैं और हमारी जो जोग्राफी है वो वेरी कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम ट्राइबल विलेजेस टू डेंस फॉरेस्ट और हाई माउंटेन्स। दिस रूल इम्पोजेज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट by the Election Commission of India to uphold voting rights.